Hello guys, English Guru welcomes you in my new video. So let us continue our chapter. So up to here we have just read about the two Armenian boys, Murad and Aram, how Murad stole the horse and then he came to Aram. Then they both started to ride the horse, and now see what happens here. Actually Aram just insisted to ride the horse, so now Murad allowed him. Now what happened? Actually, a ram kicked into kicked into the muscle of horse. My cousin Murad said, "What are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about." Okay, तो अब जो राम है वो घोड़े को के मसल पे किक करता है और मुराद क्या बोलता है कि that if you really want to ride the horse then be fast, otherwise everybody will be wake up, कि सब जाग जाएंगे, उसके बाद क्या है हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. So I kicked into the muscle of the horse once again. दोबारा मैंने मसल किया. It reared and snorted. वो दोबारा से हिन लेग्स पे, पीछे वाली लेग्स पे खड़ा हुआ और स्नॉट किया. उसने अपने घोड़े वाली जो ही वाली आवाज़ है वो निकाली. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the fields of the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. अब क्या है कि उसने ऐसा करा, हॉर्स की आवाज़ निकाली और फिर ये इसने रन करना स्टार्ट कर दिया. एक्चुअली आई कुडंट नो व्हाट टू डू. ओके, द हॉर्स स्टार्टेड टू रन इंस्टीड टू इरिगेशन डचेस, इट स्टार्टेड टू रन टुवर्ड्स द वाइनयार्ड. ओके, वाइनयार्ड की जो फील्ड्स हैं उधर उसने हॉर्स ने दौड़ना शुरू कर दिया. और ये जो वाइनयार्ड फील्ड्स हैं वो किसके हैं? ये डिकन हैलबियन के हैं. ओके, वेयर इट स्टार्टेड टू लीप ओवर द वाइन्स. इसने वाइन्स की जो वाइन्स है ना, वाइन्स की जो क्लाइंबर्स हैं उनके ऊपर से लीप करना, जंप करना शुरू कर दिया. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. My cousin Murad came running down the horse. और मेरा जो कज़न मुराद है वो जो है ना पीछे पीछे आ रहा था, रोड के अक्रॉस वो आ रहा था. I am not worried about you. And then he said that I am not worried about you. मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ. उसने जोर से चिल्लाया. We've got to get that horse. हमें वो हॉर्स पकड़ना ही होगा. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. और मान लो अगर तुम्हें घोड़ा मिल भी जाता है और तुम उसके ऊपर चढ़ जाते हो तो थोड़ा सा जेंटल ही रहना. I will be very near. No, do not be nervous because अभी घोड़े ने राम को नीचे गिरा दिया है. So I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. तो मैंने क्या करना शुरू करा, मैं रोड के अक्रॉस चलने लगा, रोड के साथ साथ चलने लगा. और जो मेरे कज़न मुराद हैं वो क्या है, इरिगेशन डिच की तरफ चला गया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. It took half an hour to find the horse. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. एंड देन मुराद सेड दैट ऑल राइट, ओके, अब तुम एक काम करो, सारी दुनिया जो है ना वो जाग गई है, मतलब अब टाइम हो गया है कि लोग जाग जाएंगे और अपने अपने काम पर चले जाएंगे. सो आई थिंक नाउ जंप ऑन. ओके, जस्ट गो होम. व्हाट विल वी डू नाउ? आई सेड. तो मैंने उससे पूछा दैट व्हाट विल वी डू नाउ. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. So मुराद ने 2 ऑप्शंस दिए कि या तो हम इस हॉर्स को वापस कर देंगे या फिर हम इस हॉर्स को क्या है टुमारो मॉर्निंग तक छुपा देंगे. He didn't sound worried. तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था that he was not worried about anything, and I knew he'd hide him and not take him back, and I was pretty sure that he was not going to take him back. वो घोड़े को वापस लौटाने वाला तो नहीं है, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं उसे छुपा ही देगा, नॉट फॉर अ वाइल. और फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट वो जो है ना घोड़ा लौटाने वाला नहीं है एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर. Where will we hide him? I said, and then I asked that where are we going to hide him? हम इसे कहाँ छुपाने वाले हैं? I know a place, he said. और उसने कहा that I know a place. How long ago did you steal this horse? I said. अब रैम पूछता है मुराद से that कितने टाइम पहले तुमने इस हॉर्स को स्टील किया है.
It suddenly dawned on me. Then he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब मुझे ये थोड़ा सा आइडिया आ रहा था कि जो मुराद है वो काफ़ी दिनों से शायद मॉर्निंग में राइड ले रहा है और वो मेरे पास ऐसे मॉर्निंग में आया क्योंकि उसे पता था दैट आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्सेस. Who said anything about stealing a horse? He said. अब उसने मुझसे पूछा कि कौन कहेगा कि ये हॉर्स जो है ना वो स्टील करके मतलब मैं ये सब कर रहा हूँ. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? But again, I repeated my question. He didn't answer my question. उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. मैंने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया. Okay. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड कि मैं तो मतलब इस मॉर्निंग से पहले मैंने कभी राइड नहीं की. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. और मुराद क्या कहता है कि मैंने तो आज मॉर्निंग से पहले कभी राइड नहीं करी. और आराम क्या है? आराम इज़ प्रेटी श्योर दैट ही वॉज टेकिंग द राइडिंग्स बिफोर दिस मॉर्निंग. तो वो पूछता है कि आर यू प्रेटी श्योर, क्या तुम ट्रुथ बोल रहे हो? Of course not. Then Murad says कि बेशक नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ. He said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. अब क्या है कि हाँ बेशक तुम्हें पता है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बट सपोज इफ़ वी बोथ आर कॉट एंड समबडी आस्क यू देन दैट व्हेन डिड वी स्टार्ट दिस हॉर्स राइडिंग, देन तुम्हें यही जवाब देना है दैट ओनली दिस मॉर्निंग वी हैव स्टार्टेड टू राइड. ऑल राइट, आई सेड. He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at once time had been the pride of a farmer named Fatvizian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब क्या है कि उसने चुपचाप वो घोड़ा लिया और एक वाइन यार्ड की तरफ, एक डेजर्टेड वाइन यार्ड, मतलब पहले इस वाइन यार्ड में क्या था, जो वाइन यार्ड होते थे मतलब वाइन्स होते थे, बट आजकल क्या है कि डेजर्टेड है, ये सुनसान पड़ा है, इसमें अब कोई खेती नहीं करता. पहले एक टाइम था, ज़माना था जब ये एक फैटविजियन नाम के एक फार्मर की जो है ना यहाँ पे खेती हुआ करती थी और बहुत अच्छी वाइन्स यहाँ पे हुआ करती थी. लेकिन आजकल इसमें तो कुछ oats और ड्राई अल्फाफा इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट सिर्फ यही उस बाण में देखने को मिलते हैं, उसमें वाइन्स आजकल नहीं हैं. We began walking home and then we started for our home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but I have told you I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. Okay, then Murad explains here that it was really not easy to control the horse initially. It was wild and it wanted to just run according to its wish. But as I have told you कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा घोड़ों के साथ बहुत ही अच्छा जो अंडरस्टैंडिंग है, तो घोड़े मुझे समझते हैं, तो मैंने उनको कंट्रोल कर लिया. How do you do it? I said. Then Aram asked Murad कि तुम ऐसा कर कैसे लेते हो? I have an understanding with the horse, he said. तो मुराद बोलता है कि that I have an understanding, मेरी घोड़ों के साथ बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. Yes, but what sort of an understanding? लेकिन आराम पूछता है हाँ समझ तो है, लेकिन किस तरह की समझ है तुम्हारी और घोड़ों के साथ? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईमानदार सी समझ है हमारे बीच. उसने कहा वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. अब राम कहता है कि काश मेरे अंदर भी तुम्हारे जितनी जो है ना तुम्हारी जितनी ही समझ होती घोड़ों को समझने की, तो मैं भी उस समझ तक पहुंच पाता, मैं भी तुम्हारी की तरह जो है ना घोड़ों को डील कर पाता. राम इज से यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय. अब मुराद राम को बोलता है कि नाउ यू आर अ स्मॉल बॉय. ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. और जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ टू डू इट. I went home and ate a hearty breakfast. अब मैं घर गया और हमने जो है ना एक बहुत अच्छा नाश्ता भी किया. That afternoon my uncle Khusraw came to our house for coffee and cigarettes. और उसी दोपहर को मेरे अंकल खुसराव, as we have talked about खुसराव, वो हमारे घर आए. ओके, और उन्होंने
वो किस लिए आए, वो कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए हमारे घर पे आए। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर होती है बैठक, जो हमारा सिटिंग रूम होता है, जो हमारा सिटिंग रूम होता है, वहाँ पे उसको हम पार्लर बोल रहे हैं। स्लीपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। अब वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्मोक कर रहे हैं और सिपिंग कर रहे हैं, कॉफ़ी को पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और अपनी ओल्ड कंट्री जो हम मतलब कहीं से माइग्रेट होके ये यहाँ पे आए हैं तो उनको याद कर रहे हैं, अपनी पुरानी कंट्री को, अपनी पुरानी जगह को याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, अनदर विजिटर वहाँ पे अराइव हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। A farmer named John Byro. Now the farmer named John Byro, एक फार्मर आते हैं जिनका नाम क्या है, जॉन बायरो। an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. अब क्या है, ये एक असायरन है और इन्होंने, क्योंकि अकेले असायरन थे तो इन्होंने क्या है, अर्मेनियन भी सीख ली है, क्योंकि वो अकेले थे, ही हैड नोबडी टू कम्युनिकेट इन असायरन, तो उन्होंने अर्मेनियन सीखी ताकि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. अब क्या है, इस lonely visitor के लिए, who is the lonely visitor? जॉन बायरो। इस लोनली विजिटर के लिए मेरी मदर जो है ना वो कॉफ़ी ले आती हैं और तंबाकू ले आती हैं। अब वो उसको तंबाकू के साथ जो है ना सिगरेट बनाते हैं जो जॉन बायरो हैं, और फिर कॉफ़ी पीते हैं और स्मोक करते हैं। एंड देन लास्ट द साइंग सैडली, और पीने के बाद वो क्या करते हैं, साई करते हैं, जो आह भरते हैं ना, तो सैडली वो एक साई करते हैं, हाँ, लाइक दिस। He said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." और वो क्या बताते हैं कि मेरा जो सफ़ेद और सुंदर सा घोड़ा था वो लास्ट मंथ चोरी हो गया था, वो अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। So my uncle Khusrau became very irritated and shouted, "It's no harm. See, here it is very funny." अब जो अंकल खुसराव हैं वो क्या है, वो इरिटेट हो जाते हैं। अब वो बात क्या है कि वो इतना जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो एक होम सिक है और मतलब अपनी कंट्री से, अपनी जो प्रॉपर लैंड थी ना वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हुए हैं और उनको अपनी वो जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो होम सिक हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ उन्हें बार बार याद आती है और बाकी कोई भी अगर उन्हें कुछ कहता है तो वो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनके ऊपर शाउट करते हैं। इट्स नो हार्म व्हाट इज़ लॉस ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, कि क्या हुआ, क्या हानि हो गई, एक घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान होता है। हैवंट वी लॉस्ट द होमलैंड, हमने तो अपनी मातृभूमि ही खो दी है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम एक घोड़े के ऊपर क्यों रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर टू से। ओके, जॉन बायरो सेड। अब जॉन बायरो क्या कहते हैं कि एक सिटी में रहने मतलब एक तुम्हारे लिए एक ठीक है, तुम सिटी के एज पे रहते हो, तुम्हारे लिए ये सब चलता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए ठीक है, बट वट ऑफ माई सरी होती है घोड़ा गाड़ी। अब क्या है कि जो 4 पहिए वाली जो गाड़ी है मेरे पास, उसकी घोड़े के बिना उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, और उस गाड़ी का मैं क्या करूं अब बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसराव रोड। और मेरे अंकल खुसराव जो है ना वो दोबारा से रॉर करते हैं कि इसकी तरफ अटेंशन मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। और जॉन बायरो कहते हैं कि मैं 10 मील पैदल चल के यहाँ पे आया हूँ। सो अंकल खुसराव उसको क्या जवाब देते हैं, यू हैव लेग्स माई अंकल खुसराव। तो उसको अंकल खुसराव बोलते हैं कि क्यों, तुम्हारे पास लेग्स नहीं है क्या, चल कर आए हो तो क्या हो गया। सो माई लेफ्ट लेग पेन्स मी। अब जॉन बायर बोलते हैं कि मेरी जो बाईं जो पैर है वो मुझे दर्द कर रही है, वो उसमें मुझे दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसराव रोड। तो मेरे अंकल खुसराव जो है ना वो रॉर करते हैं कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कोस्ट में $60, द फार्मर सेड। अब फार्मर बोलता है कि मुझे उस, तुम्हें पता है उस घोड़े की कीमत क्या है, $60 है उस घोड़े की कीमत। आई स्पिट ऑन मनी। अब अंकल खुसराव उसको क्या जवाब देते हैं कि पैसा क्या है, पैसे के ऊपर तो मैं थूकता हूँ। सो अंकल खुसराव सेड ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब क्या है,
जो जॉन बायरो है ना वो खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से दरवाजे को झटके से खोलते हैं और झटके से ही बंद करते हैं, मतलब धड़ाम से खोलते हैं धड़ाम से बंद करते हैं। और मेरी माई मदर एक्सप्लेन, फिर उसके पीछे पीछे मेरी मदर जाती है एंड देन माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट about whom my mother is talking. Actually my mother is telling John Byro about Uncle Khusrao that he has a gentle heart. She said that simply that he is homesick and such a large man. अब तुम खुद ही सोच के देखो कि इतना गट्टा गट्टा आदमी और मतलब होमसिक हो गया है, उसे अपने लैंड बहुत याद आती है, इसलिए वो थोड़े से इरिटेशन हो जाती है, उनको इरिटेटेबल हो जाते हैं। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. अब क्या है, ये सुन के जॉन बायरो है ना, he just went away but I ran to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree. वो वहाँ पे एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. अब robin is a bird. अब वहाँ पे वो पीच ट्री के नीचे बैठ के एक बर्ड के एक जो है ना वाउंडेड विंग को वो जो है ना हील करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक बर्ड की हेल्प कर रहा है जो फ्लाई नहीं कर सकता, तो उसे चोट लगी हुई है। सो थ्रू दिस इंसिडेंट वी गेट टू नो दैट ही इज़ अ काइंड हार्टेड बॉय. He was talking to the bird and moreover he was talking to the bird. What is it? He said. और उसने कहा कि ये क्या है? The farmer John Byro. I said. मैंने कहा कि जो जॉन बायरो है, जो फार्मर है, he visited our house. He wants his horse. You've had it in a month. You've had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब क्या है, ये भी थोड़ा सा फ़नी हो जाता है कि वहाँ पे जाना तो उसको चाहिए कि उसको मुराद को बोले कि दैट बहुत दिनों से तुम्हारे पास घोड़ा है एंड देन रिटर्न इट, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस. बट वो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीने से ये घोड़ा है एंड यू जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिटर्न इट अंटिल आई जस्ट लर्न हाउ टू राइड द हॉर्स. दिस इज़ रियली वेरी फनी ऑन द स्पॉट. I will take you it will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. अब मेरे cousin मुराद क्या कहते हैं कि तुम्हें तो घोड़ा सीखने में, मतलब घोड़े को राइड करना सीखने में 1 साल लग जाएगा. We could keep the horse a year. I said. तो मैंने कहा बोला कि ठीक है फिर 1 साल रख लेते हैं. My cousin Murad leaped to his feet. और वो बिल्कुल एक कूद के खड़े होते हैं. What? क्या? सरप्राइज हो जाते हैं. He roared. और वो चिल्लाता है, Are you inviting a member of the Gregorian family to steal? The horse must go back to its true honor. और तुम कह रहे हो कि मतलब लोग ये कहें कि एक इतनी प्राउड ट्राइब के एक मेंबर ने चोरी कर ली, घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही होगा. When? I said. तो मैंने पूछा कि कब जाना होगा. In 6 months at the latest. He said. कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम 6 महीने इस हॉर्स को रख सकते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हम हॉर्स को नहीं रखेंगे. He threw the bird into the air or the bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. अब वो उसको जो बर्ड है उसके हाथ में उसको उड़ाने की कोशिश करता है, 2 बार वो उड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन 2 बार गिर जाता है और फिर लास्ट में वो हाई और स्ट्रेट उड़ जाता है. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn a ride the way my cousin Murad rode. Okay, अब क्या है, करीबन 2 हफ्तों तक हमने अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग करी और जब भी मेरी टर्न आती थी ना, तब भी जो हॉर्स है वो मुझे कहीं फेंक के और वाइनयार्ड्स के वहाँ से कूद के और कहीं चला जाता था. लेकिन मैंने क्या है, मैंने होप नहीं छोड़ी थी. मैं सोच रहा था कि मैं भी इतनी ऐसे ही जो है ना हॉर्स को राइड करूँगा जैसे कि मेरा कज़न मुराद राइड करता है. One morning on the way off Fatwazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. अब क्या है कि हम दोनों एक दिन हॉर्स राइडिंग करके और उसे जो है ना उस जो फैथुजियन जो फार्मर है उसके डेजर्टेड वाइन यार्ड में छुपाने ही जा रहे थे कि हमें रास्ते में कौन मिल गया, जॉन बायरो मिल गया. नाउ सी द मीटिंग ऑफ जॉन बायरो एंड दीज 2 बॉयज़, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग.
वो जॉन बायरो जो है वो कहाँ जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू द टाउन. सो लेट मी डू द टॉकिंग. माई कज़न मुराद सेड. अब क्या है कि जिस किसान का घोड़ा है, जिस फार्मर का घोड़ा है इनके पास, वही उनको सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो मुराद कहता है कि तुम कुछ मत बोलना, मुझे उससे बात करने दो. आई हैव अ वे विद द फार्मर्स. मेरा फार्मर्स के साथ बात करने का तरीका बहुत अच्छा है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. मेरे कज़न मुराद ने बोला कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. अब जो फार्मर है उसको तो मतलब वाइट हॉर्स दिख गया और उसको दिख भी अपने ही जैसा रहा था, तो उसने बहुत ही ईगरली उस हॉर्स को स्टडी किया. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. और फिर वो उससे हॉर्स का नाम पूछता है. माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन. और मेरे कज़न मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि मेरा माई हार्ट इसका नेम है. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? अब मैं क्या है, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे यहाँ से कुछ हफ्तों पहले चोरी हुआ था. क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse, tooth for tooth. He said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honest is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब क्या है कि जॉन बायरो है वो बोलता है कि इसका तो एक एक दांत मेरे वाले घोड़े से मिलता जुलता है. You know, I could swear that this is my horse if I would not know your parents, their fame for the honesty of your tribe. अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम किस ट्राइब से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और वो किस लिए जाने जाते हैं, तो श्योरली मैं क्या करता कि मैं ये स्वेयर करता कि ये मेरा ही घोड़ा है. लेकिन शायद ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, ये मेरे ही वाले हॉर्स का ट्विन होगा, शायद कोई जुड़वा भाई होगा, इसलिए शायद मतलब उसकी और इसकी सारे के सारे फीचर्स सेम सेम मिल रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, गुड डे. और वो वहाँ से वो बिड करता है. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought that they would bark. अब क्या है कि वो मिलने के बाद अब मुराद और आराम डिसाइड करते हैं that they have to just return the horse. तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं, वो जॉन बायरो के वाइनयार्ड में हॉर्स को छोड़ आते हैं. अब जो डॉग्स हैं ना वो फॉलो कर रहे हैं वो आराम और मुराद को. अब आराम पूछता है कि मुझे तो लगा था कि ये जो डॉग्स हैं वो हम पर बाक करेंगे, लेकिन मुराद कहता है कि दैट दे वुड एट समबडी एल्स, कि अगर कोई और होता तो ऑफ कोर्स द डॉग्स वुड बाक. ही सेड आई हैव अ वे विद द डॉग्स. लेकिन मेरा तो डॉग्स के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जो डॉग्स हैं ना वो मेरे ऊपर बाक नहीं करने वाले हैं. माई कज़न मुराद put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, okay, patted it and then we went away. और क्या होता है कि जो मेरा कज़न मुराद है ना वो हॉर्स के साथ उसको पैट करता है, उसकी नोज़ के ऊपर नोज़ रगड़ता है. ओके, एंड देन वी वेंट अवे. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब जॉन बायरो उसी दिन हमारे घर पे आते हैं और मेरी मदर को दिखाते हैं, वो 4 पहिए वाली घोड़ा गाड़ी दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो ये जो मेरा हॉर्स है वो चोरी हो गया था और उसके बाद वापस भी आ गया. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड. अब वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि लेकिन जो घोड़ा है ना वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, मतलब ज़्यादा हेल्दी हो गया है, बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी सुधर गया है. पहले थोड़ा सा अड़ियल था लेकिन अब ये बहुत अच्छा हो गया है. आई थैंक गॉड माई अंकल खुसराव हु वॉज इन द पार्लर. अब मेरे अंकल खुसराव जो उस टाइम पे भी पार्लर में यानी बैठक में बैठे हुए थे, वो कहते हैं बिकेम इरिटेटेड, वो थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हैं अगेन और शाउट करते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट. और दोबारा से वो यही शाउट करते हैं कि तुम्हारा घोड़ा अब वापस आ गया है, रिटर्न
टर्न हो गया है तो इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो और तुम चुप हो जाओ. So that's all for the day, and in the next video we are going to discuss about the questions and answer. I hope you have understood the chapter, and if you like the video, then like it, subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you and have a nice day.